we have seen that the reaction to become spontaneous, there are three criterias, okay, to determine whether the reaction is spontaneous or not. First is enthalpy. If enthalpy of the reaction is negative and reaction is exothermic, then the reaction is spontaneous reaction. Okay, see, reaction should be spontaneous. For all exothermic reaction are not spontaneous. Some example we have seen that the reaction are endothermic and spontaneous reaction. For example, melting of ice and dissolve NaCl dissolve spontaneously in water with absorption of heat from the surrounding. Okay, so these are all drawbacks for first criteria. Now second is entropy. Entropy for the spontaneous reaction should be positive. Means if for every spontaneous reaction the system should expand, okay, or the randomness of the system should be increases for every spontaneous reaction. And the example for spontaneous reaction is where delta S, change in entropy, is positive, H2 gas gives 2H. Okay, dissociation takes place here where change in entropy is positive. Okay, but for some reaction the change in entropy is negative but they are spontaneous reaction. Example is formation of H2O. Here liquid system is formed where entropy is negative, randomness of the liquid is less than the randomness of gas, the entropy of gas. Entropy is nothing but a randomness. Okay, so now third criteria is for the reaction is spontaneous is Gibbs free energy. Okay, before Gibbs free energy we'll see second law of thermodynamics. According to the second law of thermodynamics, the total entropy of the system and surrounding increases in spontaneous process. Okay, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो है सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी डेल्टा एस, चेंज इन डेल्टा एस क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए. हमने अब तक जो बात की थी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए सिर्फ सिस्टम का एंट्रोपी चेक कर रहे थे, यस, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम. बट for second law of thermodynamics, the second law of thermodynamics state that total entropy of the system and its surrounding increases in spontaneous process. For the process to be spontaneous, change in entropy of system and plus change in entropy of surrounding should be greater than zero. Okay, the change ऑफ एंट्रोपी शुड बी ग्रेटर देन जीरो. मतलब सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग सराउंडिंग और सिस्टम दोनों भी कंसिडर किया है. ओके, बट सिस्टम का एंट्रोपी चेंज फॉलो करना और सिस्टम का एंट्रोपी चेंज देखना इजी है. ओके, अगर सराउंडिंग से कंपेयर करेंगे, क्योंकि रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब में फॉर एग्जांपल रिएक्शन हो रहा है, तो टेस्ट ट्यूब जो है स्मॉल सिस्टम है, उसमें 50 मोलिक्यूल्स या 20 ml 10 ml से डील करते हैं. लेकिन सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग को हम हमारी रिएक्शन से, हमारी एक छोटी रिएक्शन जो टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर रहे हैं उससे सराउंडिंग पे, यूनिवर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या एनर्जी कहाँ से चेंज होगी वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते. तो सराउंडिंग के लिए पॉसिबल नहीं है एंट्रोपी हमको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करा. ओके, हम जो है एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी फॉर दिस सिस्टम वी कैन डिटरमाइन. ओके, हियर इज द एग्जाम्पल is consider here H2 plus O2, that is entropy change for this reaction is negative. Okay, system, and enthalpy change is also negative, it is exothermic reaction. और टेम्परेचर गिवन है एट 29 to 98 केल्विन पे टेम्परेचर है. ओके, चेंज इन एंट्रोपी इज -327 जूल पर केल्विन.
and enthalpy change is -572 किलोजूल. ओके, अब हमको क्या करना है, टोटल चेंज इन एंट्रोपी टोटल प्लस सिस्टम प्लस सराउंडिंग का फाइंड करना है. वी नीड टू नो एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग. ओके, delta H for the reaction is given when 2 moles of H2 reacts with 1 mole of O2 gas and combine to form 2 mole of what, liquid water. Okay, and heat is released. heat क्या हो रही है इधर, released हो रही है, नेगेटिव साइन है. ओके, heat is released which is received by surrounding. रिएक्शन के लिए गिवन है, मतलब हमारे सिस्टम के लिए गिवन है. डेल्टा एच जो है फॉर द सिस्टम इज नेगेटिव. ओके, एंड डेल्टा एच विच इज़ नॉट गिवन हियर एंड नॉट पॉसिबल टू फाइंड, सो विच इज़ रिसीव्ड बाय सराउंडिंग. ओके, एंड द डेल्टा एच फॉर द सराउंडिंग शुड बी पॉजिटिव. ओके, बिकॉज delta H, the enthalpy change for the system given as negative value. Okay, so okay, received by surrounding at constant pressure and temperature. Temperature is given 298. The entropy change of surrounding is, okay, entropy change calculate किया और जो value आ रहा है, the वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव. ओके, सो यहाँ पे ये रिएक्शन के लिए प्रूफ किया है, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी टोटल एंट्रोपी सिस्टम प्लस सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन 0. सो द रिएक्शन इज spontaneous now. Okay, it follows that to decide spontaneity of the reaction we need to consider entropy of system and its surrounding. The total energy increases during a spontaneous process that finally reaches equilibrium. For equilibrium reaction, delta S, that is change in entropy, total entropy. Okay, ये second law है. Total entropy for the equilibrium process is equals to 0. Okay, and change in entropy system plus surrounding, okay, is greater than 0. If it is greater than 0, the process is spontaneous process. The change in entropy when it is less than 0, the negative value, the process should be, or the process is non-spontaneous. Okay, so for the spontaneity of reaction, entropy, the change in total entropy should be positive or greater than 0. बट हम टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं कर सकते, सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने सिस्टम का एनर्जी सिर्फ कंसिडर किया. अब वो सिस्टम की एनर्जी जो है, चेंज इन एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, उसको हम बोलेंगे एंट्रोपी. जो है सिस्टम की एनर्जी की बात करेंगे तो गिब्स फ्री एनर्जी. ओके, गिब्स फ्री एनर्जी. ओके, सो गिब्स फ्री एनर्जी और गिब्स एनर्जी क्या है, एज pointed out in the preceding section, it is necessary to determine that change in entropy, that is change in delta S of the system and delta S of surrounding, for to know the spontaneity of the reaction. Okay, now we are more interested in the system, that is reaction mixture, which we are dealing with, that is reaction in और reaction in beaker और टेस्ट ट्यूब, जिसमें भी हम रिएक्शन कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम होगा. ओके, सराउंडिंग पे क्या इफेक्ट हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, एनर्जी कहाँ से हम ले रहे हैं और क्या एनर्जी में चेंज हो रहा है सराउंडिंग में वो नहीं देखना है. बट सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए, टोटल एंट्रोपी जो है 0 से ज़्यादा होना चाहिए. लेकिन अगर गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं तो सिस्टम की बात करेंगे सिर्फ. It is therefore convenient to consider the criteria of spontaneity in terms of thermodynamic properties of system. Okay, and this problem was solved by the scientist Gibbs. He introduced a new thermodynamic property called Gibbs energy, usually denoted by G, and the equation is, or Gibbs energy is defined as G is equals to H minus Ts. Okay, G is equals to, where H is the enthalpy of the system, T is the temperature, and S is entropy. Okay, entropy, S is entropy, and G is Gibbs free energy, Gibbs energy. The change in Gibbs energy at constant temperature and constant pressure, change is given by delta G. Delta G is equals to delta H minus T delta S. Okay,
अब गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टिनिटी में क्या रिलेशन है? सी, the total entropy change is equals to entropy change, that is delta S for the system plus delta S entropy change for the surrounding. ओके, और हम इसको डेल्टा एस भी अगर लिखा है सिर्फ तो मतलब वो सिस्टम के लिए लिखा है, चेंज इन एंट्रोपी फॉर द सिस्टम. ओके, अगर सराउंडिंग के लिए लिखेगा तो ये सबस्क्रिप्ट दिखाएगा सराउंडिंग के लिए और टोटल एंट्रोपी के लिए. ओके, सो रिलेशन क्या है एंट्रोपी चेंज में, टोटल एंट्रोपी चेंज में और गिब्स एनर्जी में? सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो है थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं जब चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव हो और ग्रेटर देन ज़ीरो. ओके, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस, टोटल डेल्टा एस जो है is greater than 0, then the reaction is spontaneous reaction. Okay, if delta H is an enthalpy change for the reaction, okay, हम डेल्टा H प्लस पॉजिटिव कंसिडर करते हैं फॉर द सिस्टम के लिए, तो सराउंडिंग के लिए डेल्टा H का वैल्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव. ओके, डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी शुड बी नेगेटिव फॉर सराउंडिंग. अगर हम सिस्टम के लिए पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं मतलब सिस्टम एनर्जी क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, सराउंडिंग से एनर्जी रिलीज हो रही है जो सिस्टम में एब्जॉर्ब कर रहा है. ओके, सो डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी शुड बी नेगेटिव. तो एंट्रोपी चेंज के लिए हम एंट्रोपी का फॉर्मूला है हीट Q डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. ओके, हीट एनर्जी और एनर्जी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय T. सराउंडिंग के लिए लिख रहे हैं, नेगेटिव साइन है डेल्टा एच के लिए. ठीक है, अब क्या करेंगे? इक्वेशन 4.36 जो है वो है टोटल एंट्रोपी चेंज इज इक्वल्स टू डेल्टा एस फॉर द सिस्टम प्लस डेल्टा एस फॉर द सराउंडिंग. सो सराउंडिंग के प्लेस पे दैट सराउंडिंग का जो वैल्यू है वो अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज माइनस डेल्टा एच अपॉन टी. ओके, चेंज इन एंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर. तो ये वैल्यू हम इक्वेशन में सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4.36, the new equation will form, that is delta S entropy change total entropy is equals to delta S for system minus सराउंडिंग है, माइनस साइन ये लगेगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, डेल्टा एच अपॉन टी. ओके, फॉर देयरफॉर टोटल एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम ओनली. ओके, टोटल एंट्रोपी किससे रिलेट करा ये इक्वेशन में? सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी से. और इसके पहले की इक्वेशन जो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग था वहाँ पे दोनों भी एंट्रोपीज थी, सिस्टम प्लस सराउंडिंग. जो टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी चाहिए होता है. ठीक है, लेकिन जो हमने इक्वेशन कैलकुलेट किया उसमें जो है सराउंडिंग के लिए हमने वैल्यू पुट किया डेल्टा एच अपॉन टी. ओके, एंड डेल्टा एस जो है टोटल एनर्जी है और यहाँ पे सिर्फ डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम के लिए. अब इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, विल गेट टी डेल्टा एस, टी को इधर शिफ्ट किया तो टी डेल्टा एस टोटल एंट्रोपी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ओके, टी डेल्टा एस. और गिब्स एनर्जी का ये फॉर्मूला है. ओके, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस टोटल. ये हम इक्वेशन में equation 4.35 is delta G is equals to T delta S. ये इक्वेशन है माइनस टी डेल्टा एस. ओके, इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं डेल्टा जी का. सो फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इफ एंट्रोपी इज ग्रेटर देन ज़ीरो
हेंस डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो। ओके, डेल्टा जी का वैल्यू क्या आना चाहिए, लेस देन ज़ीरो, नेगेटिव आना चाहिए डेल्टा जी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर गिब्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस इन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये याद रखना है, गिब्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। So the second law leads to the condition of spontaneity which are summarized here. First is the change in entropy, total entropy should be greater than zero and change in Gibbs energy is less than zero. The process is spontaneous. If change in entropy of the total entropy is less than zero and Gibbs energy, change in Gibbs energy is greater than zero, the process is non-spontaneous. Okay, if change in entropy is equals to zero and Gibbs energy, change in Gibbs energy is equals to zero, the process at equilibrium is at equilibrium. ये याद रखना है तीनों conditions. Okay, अब डेल्टा एच एन और एंट्रोपी, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। ओके, अब टेम्परेचर से ये दोनों वैल्यूज़ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सी अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, रिएक्शन इस इक्वेशन में टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं और डेल्टा एच नेगेटिव है। ओके, डेल्टा एच भी नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हाई टेम्परेचर पे है। ओके, हाई टेम्परेचर पे है और यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे बताया एट लो टेम्परेचर। ओके, तो हम लो टेम्परेचर पे डेल्टा एच और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका वैल्यू भी नेगेटिव होगा होल टर्म ये, बट डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, दिस टर्म इज़ नेगेटिव। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड होगा और साइन क्या लगेगी, वैल्यूज़ को फाइनल आंसर में माइनस साइन लगेगी। ठीक है, तो वैल्यू जो आएगी डेल्टा जी की नेगेटिव आ रही है, डेल्टा जी इज़ नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, और लो टेम्परेचर पे ये वैल्यू लो हो रहा है तो साइन जो है इसका लगेगा, लो टेम्परेचर पे जो है ये वैल्यू डेल्टा जी का वैल्यू आएगा नेगेटिव। ओके, इफ़ डेल्टा एच और डेल्टा एस पॉजिटिव लेते हैं हम, ओके, तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, तो ये वैल्यू को हमको हाई करना है। ओके, नेगेटिव आनी चाहिए वैल्यू, सो नेगेटिव साइन किसका है, ये वाले टर्म का। इफ़ डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव, ओके, और फाइनल आंसर में जो है साइन ये टर्म का लगेगा, बिगर टर्म का। ठीक है, प्लस और यहाँ पे माइनस होगा। उसके बाद टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए टेम्परेचर, तो हाई वैल्यू जो है एंट्रोपी से मल्टीप्लाई होने के बाद ये टर्म जो होगा हाई बनेगा। ठीक है, तो साइन जो होगा इस टर्म का लगेगा, मतलब डेल्टा जी जो फाइनल आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए एट अ हाई टेम्परेचर। अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस पॉजिटिव है, यस, तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब टेम्परेचर हाई है। ओके, डेल्टा जी नेगेटिव इफ डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव एट लो टेम्परेचर। ये बोथ टर्म नेगेटिव है तो टेम्परेचर लो होना चाहिए, जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी नेगेटिव आएगा। if these terms are positive, the temperature should be high, okay, for delta G to be negative. ओके, इक्विलिब्रियम अगर रिएक्शन है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम है तो गिब्स एनर्जी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन इज गिवन डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। लॉग ऑफ क्यू मीन्स ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ओके, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू से हम इसको डिफाइन करते हैं जब गैसियस सिस्टम दिया होता है। ठीक है, वेयर डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, दैट इज Gibbs energy change when the reactant and products in reaction are in their standard state. Q is called reaction quotient. Q is analogous to that of equilibrium constant. हमने equilibrium constant पढ़ा है equilibrium reaction के लिए K. ओके, K से ही ये K के जैसा ही है, K के तरह ही इसका वैल्यू निकलता है, लेकिन Q जो है
फॉर गैशियस सिस्टम के लिए हमको कैलकुलेट करना था, क्यू के लिए क्या है, गैशियस सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। के जो है हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में निकालते हैं, क्यू जो है गैस है तो हम उसका प्रेशर निकालेंगे, क्यू पी इफ गिवन, सो प्रेशर निकालना है उसका, ओके। एंड नॉन इक्विलिब्रियम एंड इन्वॉल्व्स नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर इन केस ऑफ गैशियस रिएक्शन। तो यहाँ पे एल ये रिएक्शन जो है डेल्टा जी, इफ द रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल्स टू चेंज इन गिब्स स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ओके, स्टैंडर्ड कंडीशन पे आर टी एल एन क्यू वेयर आर इज अ गैस कांस्टेंट, ओके, टेम्परेचर एंड क्यू सी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट सी एंड डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ओके। क्यू पी निकालना है तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, वेयर द रिएक्शन रीचेस। अब इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अभी देखा हमने एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, यहाँ पे आना चाहिए डेल्टा जी, ओके। यहाँ पे डेल्टा जी होगा, जी नॉट नहीं, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव। तो द इक्वेशन बिकम्स 0 इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी प्लस आर टी एल एन के सी, ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और के पी, उसके साथ हमको रिलेशन देखना है के सी और के पी। सो इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के सी एंड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के पी, ओके। लॉग टू द बेस 10, लॉग टू द बेस 10 लिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2.303 आर टी लॉग के सी, ओके, एंड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू के पी अगर प्रेशर गिवन है तो। ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, और डेल्टा जी नॉट जो है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोलेंगे, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। एच नॉट भी रिएक्शन के लिए देता है, चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन सी। एच नॉट जो है रिएक्शन चेंज एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, ओके। एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वैल्यूज दी होती है, टेम्परेचर 298 केल्विन पे, ओके, प्रेशर टेम्परेचर की वैल्यू एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिस पे डेल्टा एच निकालते हैं, तो हम उसको चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही डेल्टा एच नॉट का वैल्यू है, सब ये रिएक्शन के लिए फिक्स्ड है। This is a last topic, that is Gibbs free energy for chemical thermodynamics. Chemical thermodynamics में फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट है, और ये सारे इक्वेशंस जब तक देखे हमने, यस, गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या रिलेशन है, -2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के सी, ओके।